Hello, guys. A very happy good morning to all of you. This is Manish here, and I'm going to be the faculty of geography for your UPSC preparation. Okay, and whatever topic is going to come from the geography part, or maybe what is the whatever the syllabus of your UPSC journey, which comes from geography, like your pre, then mains, okay, and then your current affairs. So all the thing, and I'm going to teach you. And first we are going to cover the static topic of geography, and then we will move further for the dynamic topic of dynamic parts, like a contemporary issue, map based question, and places in news, and some of the policy, or the some of the factor which is going to affect the government policy, like demographic dividend, the age, and human and economic geography. Okay, so before going to start, there is something about me, that I have completed my BTech in mechanical engineering in 2010 to 2014 from Lovely Professional University. Then I worked as a production engineer in Isaac Hitachi Johnson Limited for 3 years. Then I joined an academy as an educator. There I taught English. There I taught English for SSC, and engineering of mechanical engineering, and geography and current affairs. Okay, and right now I'm working with Shankar IS as a subject matter expert. Okay, so before going to start any of the topic, we should have a proper planning, that how we are going to approach this topic, that which going to attain our goal. Okay, so as everyone know that the approaching UPSC, the NCRT part is a basic. NCRT make you to understand how the topic. Okay, ये आपके माइंड को सेव करता है, that how you are going to deal with, and how you are going to approach your study. And when you will start writing the mains answer writing, how crisp and with full of data, or full of the knowledge you are going to produce, that examiner going to understand by just seeing your answer sheet, that you are a knowledgeable person. जब आप एनसीईआरटी देखोगे, स्पेशली जब तमिलनाडु के एनसीईआरटी देखो, एंशिएंट और मिडाइवल के, उसमें आपको भर भर के पूरा डाटा फैक्ट्स इस तरह से दिया गया है कि मतलब आपको लगेगा ही नहीं, कि अगर आप उस तरह से लिख दो एंशिएंट मिडाइवल कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री, जो GS1 का पार्ट है, then I don't think that you will get anything less than 10. अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो you will get definitely the 6 marks or the 7 marks, definitely जिस तरह से NCERT में लिखा हुआ है. And I will going to provide you how to add the map based question. Okay, how to add map. तो ज्योग्राफी में जब आप किसी टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ोगे, तो आपका बेसिक कवर हो जाएगा. ओके, जब आप दो फर्स्ट थिंग क्या है, स्टूडेंट शुड हैव read first NCERT, then attend my lecture, then make notes from the lecture notes. Okay, उसके बाद जब आप ये तीनों स्टेज पे आ जाओगे, then revise it. Once you have revised the lecture notes and NCERT, means you go through the NCERT 2 times and lecture note 1 times, then revise it, then start attempting the previous year question. This will give you the information about what is the favorite topic of UPSC, and how you have to attempt the question. आपको किस तरह से प्रीवियस ईयर किस तरह से स्टडी करना है, जो कि आप यूपीएससी के क्वेश्चन को टैकल कर सकोगे. जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. ओके, देन if something is not mentioned in NCERT and in my lecture and lecture notes, then make notes from the previous year question. Okay, कुछ समय क्या होता है कि आप जो एमसीक्यू पढ़ते हो, उसका जो 4 ऑप्शन होता है, उस 4 ऑप्शन के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन रखना होता है, बिकॉज दैट आर गोइंग टू दैट इट सपोज टू बी द आस्क इन यूपीएससी. एंड ऐसा वो किया हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सिर्फ ऑप्शन में थे, उसका आंसर नहीं था वो क्वेश्चन का, एंड दैट आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओके, तो उसके बाद जब वो नोट्स बना लोगे, देन रिवाइज इट,
और जब एक बार आप फिर से ये सारा जो स्टेज रिवाइज कर लोगे, देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। किसी भी कोचिंग सेंटर का आप और हम लोग भी प्रोवाइड कराएंगे, तो आप इसका जो है ना आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो। देन उसमें अगर कुछ नया चीज़ आए करंट इशू का, या फिर जो मेरे लेक्चर में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, या फिर आप कहीं से नहीं उसके बारे में पढ़े, देन उसको नोट करो, देन रिवाइज दिस प्रोसेस। Revise, practice, repeat, revise, practice, repeat, and make it till you get it. Okay. So the topics which you are going to cover under this geography syllabus, the first thing is world geography, then Indian geography, then human and economic geography, both relate to world and Indian. Okay. Next is contemporary issue and the map based question, that which is a dynamic part. Okay. तो उसके जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, उसके अंदर में जो आपका सिलेबस है, जो कि हम लोग अभी आपको उसका लेक्चर नोट प्रोवाइड कराएंगे, वो है आपका फर्स्ट यूनिवर्स इवोल्यूशन। उसके बाद आपका होगा अर्थ इवोल्यूशन, जिसमें आपका ज्योग्राफी, टाइम स्केल ऑफ अर्थ, और उसके बाद इंटीरियर ऑफ अर्थ इसमें कवर किया जाएगा। फिर आपका होगा वोल्केनो में आपका प्लेट बाउंड्री जो थ्योरी है, उसमें आपका कन्वर्जेंट थ्योरी, डाइवर्जेंट थ्योरी, ट्रांसवर्स थ्योरी। उसके बाद आपका उसमें अर्थ को कवर किया जाएगा। फिर होगा आपका रॉक सिस्टम, जिसमें आपको इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, और इसके जो स्ट्रक्चर हैं और किस तरह से फॉर्म होते हैं वो आपको बताया जाएगा। फिर रॉक साइकिल क्या होता है वो भी आपको बताया जाएगा, मतलब ये तीनों जो रॉक है वो किस तरह से फॉर्म होते हैं ये आपको बताया जाएगा। फिर होगा आपका थ्योरी, जो आपका है कॉन्टिनेंटल थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके बाद लैंड फॉर्म ऑन अर्थ, जिसमें आपको माउंटेन लैंड फॉर्म, प्लेट्यू लैंड फॉर्म, प्लेन्स लैंड फॉर्म आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर में ओशिनोग्राफी, जिसमें आपको ओशियन और मरीन कल्चर के बारे में बताया जाएगा, जिसमें कि आपका कवर किया जाएगा ओशियनिक रिलीफ एंड ओशियनिक करंट, देन ओशियनिक टाइड्स, जो हाई टाइड लो टाइड होता है, ओशियनिक टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, आपका जो सैलिनिटी की कितना होना चाहिए, और आपका ओपन सी क्लोज सी में जो क्वेश्चन आते रहता है यूपीएससी में, वो इसमें कवर होगा। फिर आपका कोरल रिफ्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें आपका क्वेश्चन आता है, ये इन्वायरमेंट का भी एक टॉपिक है। नेक्स्ट इज वाटर बॉडीज, इसके अंदर में रिवर्स ऑफ वर्ल्ड एंड सिटीज अराउंड देज, जो आपका क्वेश्चन आ जाता है, जो कि अब प्रीवियस जस्ट आप देखोगे 2020-21-22 सब में आपका क्वेश्चन पूछा गया। जैसे बोल्गा नदी पे पूछा गया, आपका नील रिवर पे पूछ सकता है, अमेजन के बारे में पूछ सकता है, आपका यूरोप में जो नदी है उसके बारे में पूछ सकता है, आपका जो लेक बेकाल है रसिया में वो पूछ सकता है, यूएस के जो मिसौरी है रिवर सिस्टम उसके बारे में पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो उस पर 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड रिवर पे, वो होगा। इसमें वाटर बॉडीज होगा, लेक वाटर, फ्रेश वाटर लेक है। ओके। और सिटीज़ कौन कौन से उस जैसे आपका दनुबे रिवर है, आपका अभी जो यूक्रेन वार हो रहा है वो किस रिवर के आसपास में उस जगह पे वार हो रहा है, वहाँ पे कुछ सिटीज़ है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके। नेक्स्ट होता है आपका क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर में आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, मूवमेंट ऑफ एयर, टेम्परेचर इन्वर्जन। ओके। उसके बाद इसमें आपको बताया जाएगा हीट बजट, एल्बिडो, देन आपका क्लाउड्स, टाइप ऑफ क्लाउड, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ओके। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा प्रेशर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड। ओके। इसमें आपका जो हीट जोन, सॉरी आपका लो टेम्परेचर, सॉरी आपका जो फेरी सेल है वो सारे सेल इसमें पढ़ा जाएगा, तो 3 सेल होता है। उसके बाद विंड सिस्टम ऑफ वर्ल्ड, लोकल विंड्स एंड जेट स्ट्रीम। लोकल विंड्स मेनली आपको ये वर्ल्ड के बारे में बताया जाएगा। जो आपका लोकल विंड्स इंडिया के रिस्पेक्ट में होता है वो आपको इंडियन ज्योग्राफी में बताया जाएगा। जैसे आपका ब्लूसूम होता है, लू होता है, हिट जो गर्मी में चलता है, ये आपका इंडिया का, ये आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा, ना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ओके। वो लोकल विंड जो है ना, चिनूक विंड, जो आपका चिनूक विंड है, ये आपका जो यूरोप से निकलता है, तो यूरोप का और नॉर्थ अमेरिका का जो आपका विंड है वो सब आपको बताया जाएगा। ये सब क्वेश्चन आते हैं। ओके। जो उसके बाद जेट स्ट्रीम पे जैसे रोजबी वेव है, ये आपको पूछा जाएगा। फिर आपको जो है थंडर स्टॉर्म, हाउ इट फॉर्म, साइक्लोन हाउ इट फॉर्म, अल्नीनो अल्लानीनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा ही जाता है। उसके बाद आपका ब्रीज सिस्टम, ये मैंने यहाँ सिर्फ ब्रीज दे दिया, ये आप वो ब्रिज मत समझ लेना, वो जो साबुन आता है ब्रिज। ओके। उस पर मत आप कंसंट्रेट हो जाना, डोंट गो देयर। ओके। दैट्स अ ट्रैप। तो इस ब्रिज सिस्टम में आपके अंदर पढ़ाया जाएगा आपको लैंड सी ब्रिज, उसके माउंटेन वैली ब्रिज, इसमें आपका
माउंटेन वैली ब्रिज जो है इसमें आपका टेम्परेचर इन्वर्जन का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। उसके बाद आपका आता है क्लाइमेटिक रीजन ऑफ वर्ल्ड। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको हर एक में पूछा। जैसे आपका इक्वेटोरियल है, आपका सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन होगा, ताइगा टुंड्रा रशिया में कैसा होता है, इंडिया में इंडियन मानसून सिस्टम, आपका कश्मीर में किस टाइप का क्लाइमेटिक रीजन है इन अगेंस्ट टू द कन्याकुमारी क्लाइमेटिक रीजन। ओके, इंडिया ये आपको इंडियन ज्योग्राफी में बताया जाएगा। इसमें वर्ल्ड में आपको टोटल बताया जाएगा, आपका मान लो साउथ अफ्रीका में कैसा है, ऑस्ट्रेलिया में कैसा है, टेम्पस के जो आपका फील्ड होता है, द बॉल्स ऑफ वर्ल्ड, ये सब आपको इसके बारे में पता है, मेडिटेरियन क्लाइमेट सिस्टम, ये सब आपको इसके अंदर में बताया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़े हैं उसको हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इसमें जनरल इंट्रोडक्शन में आपको जो है इसका लेंथ एंड ब्रेथ बताया जाएगा, और कुछ प्रॉपर्टी जैसे यहाँ का पॉपुलेशन कितना है, यहाँ का ज्योग्राफी कितना है, यहाँ पे कितना फॉरेस्ट एरिया है, ये सब आपको जनरल। उसके बाद फिजिकल डिवीजन में आपको बताया जाएगा जैसे माउंटेन हिमालय है। इसी के अंदर में आपको ये भी बता जाएंगे जो आपका इंडियन इवोल्यूशन टाइम स्केल है, जब ये रसिया से अलग जब ये ऑस्ट्रेलिया से अलग होके आपका एशिया की तरफ मूव कर रहा था, तो वो भी इसी के अंदर में आपको बताया जाएगा। फिजिकल डिवीजन में आपका हिमालयन, प्लेन रीजन एंड प्लेट्यू रीजन, और कोस्टल रीजन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ये सब आपको बताया जाएगा फिजिकल डिवीजन। बस स्टेट्स एंड यूटी, इससे बहुत क्वेश्चन, मुझे एक क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटी इन इंडिया, एंड आई जस्ट फॉरगॉट द, एक्चुअली मुझे पहले वाला याद था, जो कि अब नया वाला क्या है, दादर नगर हवेली और एक दो को मिल के तीन को मिला के सिर्फ एक ही कर दिया, तो वो मुझे याद नहीं था और मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। और आपको पता होना चाहिए कि 2 नंबर से कटअप रह गया था, मतलब यूपीएससी नहीं है ये, दूसरे एग्जाम की बात है। तो मतलब कटअप था उसका 47, मुझे आया 45, मतलब मुझे जो कोर्स चाहिए होता था। तो मतलब आपका एक एक क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर आपका ड्रेनेज सिस्टम, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रेनेज सिस्टम में आपका रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया बताया जाएगा, इसी के अंदर में आपको वाटर बॉडीज भी बता देंगे। ओके, फिर आपका क्लाइमेट जो मैंने अभी आपको बताया, इंडियन क्लाइमेट, इसी के अंदर में हम आपको लालिनो एलनिनो का जो इम्पैक्ट होता है इंडिया में, इंडियन मानसून सिस्टम में, वो भी बता देंगे। फिर आपका नेचुरल वेजिटेशन सिस्टम, यहाँ पे इंडिया में किस तरह के टोपोलॉजी पाया जाए, जैसे आपका वेजिटेशन पाया जाता है वो बताएंगे। जैसे मान लो आपका शीशम का पेड़ है, देवदार का पेड़ है, बबूल का है, आपका लाल चंदन है, वो सब मैं आपके इसके अंदर में कवर दूंगा। और आपका फिर होगा सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल, इसमें हमें आपका रेड सॉइल आपका होगा, आपका ब्लैक सॉइल होगा, इस तरह का आपका जितना भी सॉइल है तो वो कवर किया जाएगा। फिर एग्रीकल्चर, इसके अंदर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रीकल्चर जो आपका हो जाता है, इसमें आपका कवर होगा। मान लो इन्वायरमेंट भी इससे पूछा जाता है, आपका इकोनॉमिक जो है, क्योंकि आपका जो गवर्नमेंट स्कीम होगा एग्रीकल्चर लेके वो पूछा, इन्वायरमेंटल जैसे आपका पैटर्न होता है, मिक्स्ड पैटर्न, ये सब पूछा जाता है। फिर एग्रीकल्चर जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसमें आपका जो आपका एग्रीकल्चर टूल यूज होता है, टूल भी पूछा जाएगा। आपका क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है वो भी आपको पूछ लिया जाएगा। तो एक मिक्स टॉपिक है इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर, और वेरी इंपॉर्टेंट। आज से इसमें आपका प्रीलिम्स में कम से कम 2-3 क्वेश्चन और मेंस में तो आता ही है। फिर आपका फॉरेस्ट सर्वे, जो एक आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो रिसर्च करती है, इसके आपको थोड़ा डाटा याद करना पड़ेगा, कितना % ट्री कवर बढ़ रहा है, ये वो। ओके, कितना डिक्रीज कर रहा है, विच स्टेट है द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, विच स्टेट है द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ मैनग्रोव, ये सब आपको क्वेश्चन में आता है, ये आपको उसमें बता दिया जाएगा। फिर आपका आता है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ओके, ये उतना क्वेश्चन इसमें पूछता नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप इसका यूज कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी में। ओके, इंडियन सोसाइटी में कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, सोशल जस्टिस में भी अब इसका यूज कर सकते हो, और समटाइम यू कैन यूज इट इन योर इथिक्स पेपर आल्सो। ओके, इसके अंदर में आपको सेंसस बताया जाएगा, आपका 2011 का जो होगा 2011 का सेंसस, वो। फिर आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बताया जाएगा। ट्राइब्स, इस पे आ ही जाते हैं कि ये जो है झूम, जैसे झूम कल्टीवेशन, ये कौन सा किधर बनाया जाता है, वो आपको एग्रीकल्चर के अंदर बताऊंगा। लेकिन किस ट्राइब के अंदर में इस तरह का काम होता है, कौन सा ट्राइब है, इसके अंदर में आपको सहारा ट्राइब्स के बारे में बताया जाएगा। सहारा मतलब आपका हो गया क्या बोलते हो, अफ्रीका। आपको मतलब वर्ल्ड के ट्राइब के बारे में और इंडियन ट्राइब्स के बारे में बताया जाएगा। जैसे आपका नीलगिरी का जो ट्राइब्स है वो किस तरह का कल्टीवेशन करता है, वहाँ पे क्या है, जैसे स्पाइसेस क्या लोग करता है। आपका गोंड ट्राइब है, इसका पॉपुलेशन क्या है, इसका डेंसिटी क्या है, इस तरह से आपका पीवीटी होता है, भल्लूवर ट्राइब, जिसपे एक क्वेश्चन पूछा गया था,
तो उसका क्या होता है, वो जो है ना 1000 से अगर उसका पॉपुलेशन कम होता है तो उसको पीवीटी ट्राइब्स बोलते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इसके अंदर बताएगा। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, इस ट्रांसपोर्टेशन में आपको ट्रांसपोर्टेशन एयर सिस्टम आपका जो होगा, फिर आपका रेलवे, उसके बाद रोड, फिर आपको नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे, उसके बाद स्टेट हाईवे। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो लेंथ ऑफ रोड है वो आपका है कौन सा, लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो रोड होता है ना, इसका लेंथ सबसे ज़्यादा है। ओके, फिर आपका होता होगा आपका स्टेट लेवल का स्टेट हाईवे, उसके बाद जो है ना सबसे कम लेंथ जो है आपका नेशनल हाईवे का है। और सबसे ज़्यादा जो माल ट्रांसपोर्ट करता है वो नेशनल हाईवे ही करता है। अभी तो गडकरी साहब बहुत सारा बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे से भी बना रहे हैं, तो वो भी आपका एक बनता है टॉपिक आपका करंट अफेयर्स का, तो मैं वो भी बता दूंगा। फिर मिनरल्स, मेजर मिनरल्स एंड मिनरल माइनर मिनरल्स, इस पे क्वेश्चन आता है। माइनर मिनरल, मेजर, इसमें आपको सैंड माइनिंग के बारे में बता दिया जाएगा। फिर आपका होगा इंडस्ट्री, जिसका लोकेशन, फैक्टर, रॉ मटेरियल कहाँ से होता है, इस सब पे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका इसमें एक ये आपका यूज होगा इकोनॉमिक्स में भी और GS1 में, जहाँ पे आपको ज्योग्राफी पूछा जाएगा, तो ये आपको कवर कर दिया जाएगा। ओके, और लास्ट में आपका जो करंट इशू होता है, तो उसमें मैंने आपको ये पढ़ा देना है, जैसे SCO समिट, नाटो समिट, I2U2, ये आपको पता होना चाहिए कि नया जो है ना आपका बन रहा है, क्या बोलते हैं, इंडिया, इजराइल, सॉरी, इंडिया, इजराइल, और उसके बाद आपका होगा UAE एंड USA। इसको बोला जाता है कि क्वाड का जो है इस तरह से एक रिप्लेसमेंट टाइप का हो रहा है इकोनॉमिक स्केल पे। और ये बढ़िया भी है। आप ये देखो कि आप इजराइल जो है इसका किसी भी जो आपका अरब कंट्री है उसके साथ बनता नहीं है, और ये UAE के साथ इसका एक पार्ट बन रहा है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है। इंडिया UAE के थ्रू इजराइल तक अपना सारा सामान ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और USA का भी इसमें, इस पे अब इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन का चीज़ है, उस पर बात किया जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग G20 के बारे में, बिम्स्टेक के बारे में, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है ये आपका, जो पहले सार्क था ये उसका अल्टरनेटिव है, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान था और वो कोई काम आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, इसीलिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव निकाला गया। इसमें पाकिस्तान को अलग कर रखे हैं। हालांकि बंगाल में, बे ऑफ बंगाल का जो पार्ट है नेपाल और भूटान नहीं है, लेकिन बिम्स्टेक का उसका पार्ट बना के रखे होंगे। और जो भी अदर इंपॉर्टेंट बॉडीज होगा, जैसे सी का नाल्को होता है, सॉरी, सी का जो भी बॉडी होता है ना, जो आप सी को गवर्न करता है, उसके बारे में बताया जाएगा, नॉटिकल माइल्स जो भी होता है। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं एक डेमो लेक्चर ऑन GMT एंड IST। GMT आपका हो गया ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, और IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रीन मेरिडियन टाइम। ओके, कुछ लोग सोचे उन लोगों को कोई पास काम नहीं था, तो वो लोग एक दिन डिसाइड करके बोलता है कि आपको जो है चलो एक दिन कुछ पास करते हैं, और ऐसे नहीं बोलते हो, शुरू करो इंद्राक्षी लेके हरि का नाम। तो ये लोग अपने क्वीन का नाम लेके, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है जो आपको 1665 में आपका करीब इस्टेब्लिश हुआ था, उसी टाइम इन लोगों ने एक प्राइम मेरिडियन बना दिया, मतलब एक टाइम जोन बना दिया कि आपको जो है यहाँ से टाइम होगा। एक्चुअली में टाइम इस टाइप स्टार्ट नहीं हुआ था। एक्चुअली टाइम का जो आपका मेजरमेंट स्टार्ट हुआ वो हुआ आपका 19th सेंचुरी में हुआ, करीब 1865 और 1855 के टाइम पे, जब रेलवे जो है वो हमेशा टाइम के अनुसार चलता था, तो रेलवे के लिए जो है ना एक टाइम बनाया गया था जिसको रेलवे टाइम बोलते हैं। तो इंडिया में इस तरह से टाइम का शुरुआत हुआ था। मतलब आपको साउथ इंडिया में क्या टाइम होगा, नॉर्थ इंडिया में क्या टाइम, तो एक टाइम बनाया गया था रेलवे टाइम। ओके, तो इस तरह से ये आपका जो आप आजकल घड़ी देख रहे हैं, टाइमिंग देख रहे हैं, तो इस तरह से ये शुरुआत हुआ। ओके, तो अब बात आती है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, ये प्राइम मेरिडियन क्या होता है, और ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के बारे में तो बता दिया, ये लंदन में था, एक ग्रीनविच सिटी है, वहाँ पे लोग बैठ के एक दिन डिसाइड कर दिया पूरे वर्ल्ड का किस तरह से तुम टाइम डिसाइड करोगे। तो इसको आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार थोड़ा मैप में देखते हैं। ये जो है आपका ये जो मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, ये जो आपका ग्रीनविच सिटी है, इससे थोड़ा सा हटके है,
जो आपका ग्रीनविच सिटी है, यहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के जो भी सदस्य थे, जो भी मेंबर थे, उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि इस दिन यहाँ से जो है यदि आप ईस्ट जाओगे तो पॉजिटिव होगा, और जब आप वेस्ट जाओगे तो वो आपका निगेटिव टाइम होगा। कैसे? अच्छा, अब ये भी डिसाइड करना है कि आपका एक्चुअली में टाइम स्टार्ट कब से होगा। तो जो नून टाइम होता है, मतलब जब जो आप सन जो होता है, हम मान लो ये यहाँ पे सन है, ये ओवरहेड होगा यहाँ पे, तो उस टाइम को माना जाएगा 12 बजे दोपहर माना जाएगा, नून टाइम माना जाएगा। और उसी तरह जब ये जो सन जो है ओवरहेड 30 डिग्री ईस्ट पे होगा तो भी इसको 12 बजे माना जाएगा। और यही सन जब ओवरहेड 30 डिग्री वेस्ट पे होगा तो भी इसको आपको जो है 12 बजे नून माना जाएगा, दोपहर माना जाएगा। लेकिन इसमें एक क्या है कि अर्थ जो है ना मूव इस तरह करती है। ओके, तो क्या होता है कि ये इस तरह से जब मूव कर रही है, आप सोचो कि यहाँ पे जो मून होगा, मान लो 12 बजे मून है, तो आपको जो है यहाँ से जब आप इस तरह मूव करोगे तो इस तरह आपका कैसे होगा कि पहले यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ होगा, है कि नहीं? हाँ, तो इस तरह से बताया गया कि आपका जो इस तरह है ना, ये आपका प्लस होगा और इस तरह माइनस होगा। मतलब अगर आप प्राइम मेरिडियन से आप यूएसए की तरफ गए, देन यू आर लॉसिंग अ डे, एंड व्हेन यू मूव फ्रॉम प्राइम मेरिडियन टू ईस्ट साइड यू आर गेनिंग अ डे। ओके, तो अगर आप इंडिया से एक हाइपोथेसिस मान के चलो, अगर आप इंडिया से मूव करते हो लंदन की तरफ, और उस टाइम मान लो 8 बज रहा है सुबह, और अब अगर आप 6 घंटे बाद यहाँ पहुँच जाते हो, यहाँ भी मान लो 8 सुबह ही बज रहा है, तो आप तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर लिए, आपका टाइम ही कम नहीं कुछ, आपका टाइम का कुछ इस तरह से आपका टाइम सेव हो गया। मतलब एक तरह से मिराकल टाइप का लगता है, क्यों ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आपका एज तो बढ़ता ही रहता है, आपका घड़ी का समय सिर्फ इस तरह से काम करता है। ओके, तो अब इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और देखते हैं कि अर्थ जो है 24 आवर में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, यानी 1 रिवोल्यूशन कितना होता है 360 डिग्री, और कितने घंटे में 24 घंटे में। चलो इसको डिवाइड कर दो, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 15 15 दूना 30, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री। और 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट, 60 मिनट में 15 डिग्री, 1 मिनट में 15/7, 15 चौकी 60। ओके, ये 1 मिनट में 1/4 डिग्री हुआ। या फिर आप इसको ये बोल रहे हो कि 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री। 15 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 15 × 4, 15 चौकी 60, 60 मिनट में यहाँ भी आपको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, 15 डिग्री हो गया ना। तो इस तरह से आप जो है 4 मिनट में अर्थ जो है 1 डिग्री मूव करती है, और आप 1 घंटे में 1 आवर में 15 डिग्री मूव करती है। समझ गए? ये कैलकुलेशन याद रखना। चलो यहाँ पे जो गिवन है उसको ही पढ़ लेते हैं। ये 0 डिग्री लेटीट्यूड वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। वही है वेस्टर्न हेमिस्फेयर आपका लॉन्गिट्यूड जो मैंने आपको बता दिया। ये पीपीटी है, आप इसको बढ़िया से देख के पढ़ लेना। ओके, तो अब इस पे क्या है, अभी जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया ये यही है 360 डिग्री इन 24 आवर्स 15 डिग्री। मैंने आपको ये सारा कैलकुलेशन करके बता दिया। और आपको ये जो बताया था नून वाला सिस्टम वो भी। अब इसमें कैलकुलेट करना है कि आपका ये क्लॉक कैसे काम करता है। ओके, अब चलो देखते हैं। चलो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लो यहाँ पे 12 बजा है, ग्रीनविच सिस्टम है, 12 नून है। अब 30 डिग्री ईस्ट गए, इस टाइम यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा? जब लंदन में ग्रीनविच सिटी में 12 बज रहा है, तो आपका यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा 30 डिग्री ईस्ट पे? कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री आपका 1 आवर में। देखो
1 आवर में आपका जाता है 15 डिग्री, ये है 30 डिग्री, मतलब 2 आवर। यहाँ हो रहा है 12 नून, इसमें 2 जोड़ दो, यानी कितना हुआ 14 नून। 14 मतलब 2 बज रहा है। अगर ग्रीनविच सिटी में 12 बज रहा है तो 30 डिग्री ईस्ट में 2 बज रहा है, और 60 डिग्री में कितना बजेगा, चलो करके देखते हैं। 60 डिग्री ईस्ट यानी आपका 1 आवर में 15 डिग्री, 60 डिग्री है कितना है 15 चौकी 60, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 होगा। यानी आपका जो है यहाँ पे यदि 12 बजे, ग्रीनविच सिटी में 12 बज रहा है और 60 डिग्री ईस्ट में कितना बजेगा, 12 बज रहा है आपका ग्रीनविच सिटी में, और आपका जो 60 डिग्री ईस्ट होगा इसमें बजेगा कितना +4, यानी 12 4 16, यानी 4 बज रहा है। 4 शाम के 4 के शाम बज जाएंगे 60 डिग्री ईस्ट। ओके, चलो अब इंडिया के केस में देखते हैं कितना है। इंडिया का देखो, इंडिया कितना है। इंडिया का ये जो आपका गुजरात वाला पोर्शन है ये आपका 68 डिग्री है, और आपका जो अरुणाचल पोर्शन है ये 97 डिग्री ईस्ट। एक टाइम जोन होता है, मैं वो आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप ये देख लो। और इंडिया का जो मेन माना जाता है 82.5 ईस्ट डिग्री। चलो 68 डिग्री का देखते हैं। अगर ग्रीनविच सिटी में 12 बज रहा है, 68 डिग्री में कितना होगा, ये देखो 15 डिग्री, सॉरी यहाँ से चलो करते हैं। 1 आवर में 15 डिग्री, और ये क्या है 68 डिग्री। 15 30 45 चौको 60, ये 4 में 60 आ रहा है, उसके बाद ये 8 है। चलो पहले इधर करते हैं। नहीं, 4 बजकर कुछ मिनट होगा, और ये 97 है, इसको करके देखो ये कितना होगा। 1 आवर में आपका हो गया 15 डिग्री, और ये आपका 97 है, तो कितना होगा 15 30 45 चौको 60 दाम 75 छक्की 90, नहीं 6 बजकर कुछ होगा, समझ गए। यानी 6, ये तो 6, अगर ग्रीनविच सिटी में 12 बज रहा है तो गुजरात में जो उस टाइम 4 बजकर कुछ होगा, सॉरी 6 बज क्यों चौको 60, 4 बजकर कुछ मिनट होगा, और आपका अरुणाचल प्रदेश में 6 बजकर कुछ मिनट होगा। यानी कुल मिला के टोटल 2 घंटे का गैप होगा इंडिया के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह से तो काम नहीं करना चाहिए ना। मतलब मान लो अगर यहाँ पे सुबह 5 बजे सनराइज हो रहा है और गुजरात में वही 7 बजे सनराइज होगा, और अगर टाइम जो एक ही रख दिए, मान लो अगर काम नहीं चलेगा ना, तो अगर यहाँ का बंदा 5 बजे सुबह उठ रहा है और यहाँ का बंदा भी अगर 5 बजे सुबह उठेगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका रात 2 घंटा लेट हुआ है, तो इसको इसलिए इसको 2 घंटे आगे किया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम कुछ जो है ना, ये प्रॉब्लम होता है वर्किंग प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बनाया गया, उसको बोलते हैं टाइम जोन। टाइम जोन किस तरह से काम करता है ये देख लो। ये आपका हो गया ग्रीनविच सिटी, ओके। इसके इधर जाओगे तो ईस्ट, इधर जाओगे तो वेस्ट। इसीलिए जब इसके इधर लिखते हैं तो प्लस साइन यूज किया जाता है। ये देखो आपको, ये आपको दिखेगा प्लस साइन, ये आपको प्लस साइन दिखेगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे जो है ना, आप देखो इंडिया का क्या है +5.5। ये बताऊंगा किस तरह से टाइम जोन डिसाइड हुआ। ये देखो इधर का सारा प्लस है और इधर का सारा माइनस है, -8 -5, और ये आपका +2 +3 है। तो इस तरह से डिसाइड आपका ये टाइम जोन बनाया गया। तो होता क्या है कि ये क्या डिसाइड किया गया कि आपका मान लो अ, ये इंडिया का, मैंने अभी आपको इंडिया का एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे अगर 4 बजकर कुछ मिनट हो रहा है, और यहाँ पे अगर मान लो इसी जगह पे 6 बज के कुछ मिनट हो रहा है, तो इसका क्या होगा, आपको 2 टाइम जोन बनाना पड़ेगा। मान लो ये बीच में इतना दूर का 1 घंटा और इतना दूर का 1 घंटा है, इस तरह से आपको टाइम जोन बनाना पड़ता है। ओके, चलो एक बार बढ़िया से देखते हैं आपका टाइम जोन के बारे में। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा बढ़िया से समझ ना आया हो। चलो देखते हैं कि टाइम जोन का क्या मसला है। ओके, ये देखो लो,
ये आपका यूएसए, ये आपका यूएसए का हो गया। आप इसको मान लो ईस्ट पार्ट, और ये मान लो वेस्ट पार्ट। ये टोटल जो है ये आपका 75 डिग्री अप्रॉक्स है। यानी इसमें आपका अगर 75 को 15 से डिवाइड कर दो, 15 चल दाम 75 यानी 5, ये आपके 5 टाइम जोन में डिवाइस हो सकता है। टाइम जोन में क्यों डिवाइड करते हैं उसकी वजह मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पे सुबह के 6 बजे मॉर्निंग हुआ है आपका, ये 6 बजे आपका मान लो इस जगह पे 6 बजे मॉर्निंग हुआ है, तो यहाँ पे कितने बजे होगा? 6 के बाद 1 घंटा, 7 बजे मॉर्निंग होगा, फिर 8 बजे मॉर्निंग होगा, फिर 9 बजे मॉर्निंग होगा, फिर 10 बजे मॉर्निंग होगा। यानी यहाँ पे ईस्ट जोन में 6 बजे मॉर्निंग हो रहा है और वेस्ट जोन में 10 बजे मॉर्निंग हो रहा है। अगर आप एक ही टाइम जोन रखोगे, मान लो आप इसका एक टाइम जोन ले लिए इस साइड का, तो आपका जो बे एरिया है आपका ये वाला यूएस का होगा, तो यहाँ पे अगर 6 बजे सुबह हो रहा है, और अगर आप इसी टाइम मान लो यहाँ पे 9 बजे से वर्किंग टाइम है, 9 बजे से आपका, जैसे इंडिया में मान लो वहाँ भी 9 बजे से वर्किंग टाइम है। अब ये 9 बजे यहाँ पे काम करना ऑफिस चला जाएगा, और ये वेस्ट जोन में लास्ट में जो सैन फ्रांसिस्को आपका रीजन होगा, यहाँ पे 10 बजे सुबह ही हो रहा है। ये 9 बजे कैसे काम करने चला जाएगा? नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि अगर इसका मॉर्निंग, अब मान लो यहाँ पे आपका 10 बज रहा है आपका पीएम, ये आपका नाइट टाइम है, तो यहाँ पे अगर जब 10 बज रहा है जो आपका नाइट टाइम होगा, तो यहाँ पे उस टाइम क्या बज रहा होगा? 11 पीएम। इसको आगे कर दो 12 पीएम। समझ रहे हो ना? ये इस तरह से काम कर रहा है। मतलब अगर इसका मॉर्निंग आपका 5 घंटा लेट से हो रहा है, तो इसका आपका नाइट जो भी है वो भी आपका 5 घंटा लेट से हो रहा होगा। समझ गए कि नहीं? ये आपका वेस्ट जोन, ये आपका ईस्ट जोन है। तो ये इस तरह से कम, इसीलिए टाइम जोन डिवाइड कर गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिसका लेंथ और ब्रेड जो है ना आपका, ये ईस्ट और वेस्ट साइड ये ज़्यादा होता है, इसको आपको टाइम जोन में डिवाइड करना पड़ता है। आपको मैं बताता हूँ, रसिया का जो है ना 165 है। ये आपका रसिया है। रसिया का ईस्ट, सॉरी, ये वेस्ट और ईस्ट साइड जो है ये करीब आपका 165 है। और 165 को 15 से भाग करके देख लो। एक तो 1, 15, 15, 11 आवर। मतलब अगर यहाँ पे 6 बजे सुबह हो रहा है, एम में 6 AM, तो यहाँ पे आपका आपका रख लो 5 PM इवनिंग है। यानी रसिया का जो पार्ट अलास्का के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे मॉर्निंग होगा, और जो पार्ट आपका यहाँ पे अभी जो यूक्रेन के साथ वार हो रहा है इस तरफ है, यहाँ पे 5 बजे शाम हो रहा होगा। तो आप एक टाइम जोन में नहीं चल सकते ना, तो इसीलिए इसको करीब 11 या एक्चुअली याद नहीं, 7 या 11 पार्ट में इसके टाइम जोन को डिवाइड किया गया। सबसे ज़्यादा अगर कोई टाइम जोन में डिवाइड है तो आपका रसिया है। और क्यों होता है, मैंने अभी ऑफिस वाला आपको एग्जांपल दिया हुआ है, आप वो देख लो। इसी तरह ये प्रॉब्लम इंडिया में भी आ रहा है, और इंडिया में भी जो आपका एक चाय बगान इशू चलता है। ये चाय बगान आपका जो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया इस जगह से, ये हमेशा चलते 2005 में भी चल रहा था। कभी कभी ये मूवमेंट निकलता है कि एक आप चाय बगान चाय बगान आप आपका वो रख दो टाइम जोन। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो असम से इधर नॉर्थ ईस्ट का एरिया है इसका एक अपना टाइम जोन हो जाएगा, तो वर्किंग में ठीक होगा। लेकिन अब इंडिया का जो है ये सिर्फ दो आपका करीब ये 30 डिग्री का ये अंतर है, मतलब सिर्फ 2 घंटे का। तो इंडिया के लोग का आपको पता ही होगा, बहुत जुगाड़ू होते हैं, और इन लोगों ने जुगाड़ लगाया, और तो जुगाड़ लगा के क्या किया, बोला कि न तुम्हारा न हमारा बीच का कोई सोल्यूशन खोजते हैं। और इन लोगों ने सोल्यूशन खोजा भी। इन्होंने क्या किया कि बोला कि 30 डिग्री का टोटल है ना, इसको 2 से भाग कर दो, यानी 15 डिग्री, यानी बीच का एक निकाल लेते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 6 बजे सुबह हो रहा है और यहाँ पे 8 बजे सुबह हो रहा है, तो बीच का एक पार्ट निकालते हैं जहाँ 7 बजे सुबह होगा, और तुमको भी 1 घंटा आगे चलना होगा, और तुमको सॉरी, इसको 1 घंटा जो है थोड़ा पीछे चलना होगा, और इसको 1 घंटा आगे चलना होगा। मान लो अगर 9 बजे आपका आपका 9 PM, सॉरी 9 AM आपका ऑफिस टाइम होता है,
इसको क्या है कि थोड़ा जो ये 5 बजे सुबह जग जाएगा, और ये इसका जो आपका क्या बोलते हो, इस यहाँ पे अगर 9 PM में है तो ये लोग थोड़ा पीछे 7 बजे जग जाएगा। तो 1 घंटा का मैनेज करना पड़ेगा। इससे एक बहुत ज़्यादा एक हैवी कॉस्ट जो होता है वो आपका बच गया, जो कि जो जितने भी डिफरेंट टाइम जोन होते हैं उस सारे में लगते हैं, और इसकी वजह से जो है वो आपका कॉस्ट बच गया। तो इंडिया लोग जब बड़ा जुगाड़ होते हैं, तो आपका ये 82.5, इसको ये आपका 5.30 ये आपका GMT होता है, और इसी को IST बोलते हैं। तो आपको पता चल गया इंडियन लोग कितने जुगाड़ होते हैं और किस तरह से यहाँ का टाइम जोन डिसाइड होता है और किस तरह से ये काम करता है। चलो एक इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लो आप। मान लो ये आपका 22 जुलाई और ये 21 जुलाई का एक डाटा है। मान लो 21 जुलाई आपका, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका इंडिया कहाँ है, ये है आपका मुंबई का। मान लो ये 22 आपका इंडिया का जो है 23 जुलाई, सॉरी ये आपका हो रहा है 10:30 आपका, ये इंडिया में हो रहा है। ये आपका जो हमारा टाइम है 21 जुलाई, उसी टाइम अगर आप देखोगे तो लंदन में क्या हो रहा होगा, 6 AM। कैसे? अगर मेरा 5:30 बजे ये आगे होता है, ये आपका ये भी याद रखो, ये ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है और आपका ग्रीनविच सिटी है, आपका ग्रीनविच GMT है, ये है आपका लंदन। यहाँ पे अगर यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ पे 5:30 बज रहा होगा। अगर यहाँ पे 10:30 बज रहा है तो इसमें आप 5:30 घटा दो, 30 चला गया, 10 में 5 गया तो कितना हो, 6 AM। तो हो रहा, ये आपका लंदन का है एक्चुअली, GMT नहीं है। हाँ, तो इसी तरह आप यहाँ पे कंपैरिजन करके देख लो, तो आपको ये देख लो, ये आपका एक्चुअली में इंडिया का यहाँ पे दिया गया है, फिर आपका ये सिंगापुर का दिया है, फिर बीजिंग का उस टाइम क्या हो रहा होगा आपका एक्चुअली। चलो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पका पता होना चाहिए, अगर 5:30 इंडिया में हो रहा है तो आपका पाकिस्तान में कितना होगा, 5। और आपका भूटान जो है ये आगे होता ना। चलो, तो इस तरह से आप मैं आपको अभी बता रहा हूँ